Yes, good evening, beta. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, Good sir. evening, beta. Good evening, beta. Yes, beta. In last classes में बेटा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दैट इज द यूनिट नंबर 3. आई अगेन रिपीट बेटा यूनिट नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इस यूनिट के अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं बेटा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ऑल 3 चैप्टर्स हम इसको कंबाइन कर रहे हैं क्लासेस में. जो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ इसके बारे में डिस्कशन की थी, that is known as a aggregate demand and aggregate supply unit 3. So let's start beta again 5 to 10 minutes again short में रिवीजन बेटा इस चैप्टर की जहां तक हमने किया था लास्ट क्लासेस में. देन उसके बाद इसका टॉपिक का आगे टॉपिक. सबसे पहले बेटा व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? द टर्म एग्रीगेट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ अ नेशन, टोटल डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी. Aggregate demand refers to the domestically produced final goods and services which all the sector of the economy are planning to buy at a given level of income during an one accounting year. This is known as a aggregate demand. That means वो goods जो domestically produced हैं. First of all, most important term is it is known as a domestically produced. Second favorite word is final goods and services. That means not intermediate goods. Third point is are planning to buy. Point number 3 is known as a planning to buy. It is not a actual, it is planning to buy at a given level of income of an accounting year of all the sector of the economy. All sector means total there are 4 sector in the economy. Point number 1 is known as a producing sector. Second sector is known as a household sector. Sector number 3 is known as a government sector, and sector number 4 is known as the rest of the world sector. The total formula of aggregate demand is known as a C plus I plus G plus X minus M. Aggregate demand means aggregate expenditure, total demand of a nation. तो complete formula जो हम इसका use करते हैं बेटा as a whole 4 sector economy के according, that is known as a C household consumption expenditure plus I investment expenditure plus G government expenditure. X minus M means net export, export minus import. एक्सपोर्ट आपका प्लस हो रहा है, इंपोर्ट माइनस, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो इसमें जो इंपोर्ट है वो माइनस होगा बिकॉज इंपोर्ट इज नॉट अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फ्रॉम टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे कोर्स में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल. टू सेक्टर मींस टू सेक्टर मींस क्या हुआ बेटा? व्हाट डू यू मीन टू सेक्टर? Sir, C plus I. Yes, produce two sector means beta producing sector, and second one is known as a household sector. Producing sector means we can say that firms, and household sector हमें पता ही है बेटा consumer point of view. तो two sector economy means this is called the closed economy because इसमें कोई rest of the world से कोई link नहीं है, कोई export import नहीं है. It is totally as a closed economy बेटा. Two sector economy, producing sector, sector number 1, household sector, sector number 2. In this sector, the formula of aggregate demand इस sector के according aggregate demand का जो हम formula use करेंगे AD is equal C to plus I. C plus I. Very good. AD is equal to C plus I. जिसको knowledge है साथ साथ बताता जाए. It's a revision proper. AD is equal to C plus I two sector economy के according बेटा. Why we use I bar? हमने I के ऊपर ये bar क्यों लगाया बेटा? सर क्योंकि Yes. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. autonomous है. Yes, because we use the autonomous investment. क्योंकि यहाँ पे हम एक constant investment को use कर रहे हैं, not a fluctuated investment. हम यहाँ पे एक autonomous investment को use कर रहे हैं जिसका income से कोई relationship नहीं है बेटा. Your income is increase or income is decrease. This investment is a constant investment, and this investment is parallel to x-axis. थ्रू आउट द चैप्टर मोस्टली बहुत जगह पे हमने इस चैप्टर में बेटा इन्वेस्टमेंट जो यूज करनी है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यूज करनी है. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडी का जो फॉर्मूला होगा सी प्लस आई, एंड आई इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई बार. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल क्लोज इकोनॉमी बेटा. अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करें शॉर्ट में, तो फॉर्मूला ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. प्लस जी. C means producing sector. I means C stands for consumption point of view. That means household consumption expenditure. I means investment expenditure बेटा, जिसे हम I bar का use कर रहे हैं बेटा. And G stands for government expenditure.
G add on हो गया इसके अंदर, this is called the three sector economy, but this is also called the closed economy. Next one is known as a beta four sector economy model, that is known as a open economy. Four sector को हम क्या बोलते हैं? Open economy. Why it is called the open economy? Because यहाँ पे rest of the world से deal हो गया. तो एडी का जो कंप्लीट फॉर्मूला जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो फोर सेक्टर इकोनॉमी का ही था, C plus I plus G plus X minus M. Producing sector number 1, household sector number 2, government sector number 3 and rest of the world sector number 4. बट इन आर कोर्स हमने अपने कोर्स में जो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला यूज करना है, इट इज ऑलवेज एडी इज इक्वल टू C plus I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसको आप यूज करोगे कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में बेटा. What are the various components of aggregate demand? अब components जो बताने हैं बेटा, components आपने only two sector economy model के according describe नहीं करना. Components means all four sector के according, जितने भी four sectors हैं उसके according आप components के बारे में describe करोगे. Just like number 1, C, that is called the household consumption expenditure. Household जो भी expenditure कर रहे हैं totally depend on your income. As your disposable income increase, आपकी income ज्यादा हो रही है, आप consumption ज्यादा करोगे, income less, consumption less. There is a direct relationship between income and consumption. The symbol of income, income का symbol क्या होगा बेटा? Y. Y increase, consumption is also increase. Income decrease, income अगर आपकी decrease हो रही है, that means consumption is also decrease. There is a direct relationship between income and consumption. That is a part number 1. Consumption expenditure. Point number 2, it is called the इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए बेटा तो इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, मशीन टेक्नोलॉजी का इंक्रीज होना, इट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए वी यूज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. आई अगेन एंड अगेन रिपीट, हम इन्वेस्टमेंट को ले रहे हैं कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अ समीशन ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन plus government investment. Government consumption in the administrative service of the government, defense, law and order को maintain करने के लिए, etc. Government consumption. Government investment बेटा, like for example, flyovers बनाना बेटा by the highways, flyovers बनाना government के through, it is called the government investment. Net export means export minus import. Exports हमें पता ही है, इंडियन गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्री में करना, इट इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट. एंड इंपोर्ट मींस आप फॉरेन कंट्री गुड्स की डिमांड कर रहे हैं इंडिया के अंदर बेटा. इंपोर्ट माइनस होगा बिकॉज एग्रीगेट डिमांड मींस डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विस. ये पूरा टॉपिक कंपोनेंट्स ओवरऑल ऑल टॉपिक कंपोनेंट के हमारे कोर्स का पार्ट है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जो किया था बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है बेटा जनरली डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव. वो इन्वेस्टमेंट जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, इट इज कॉल्ड द इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. As your income increases, investment is also increases. It is called the induced investment. On x-axis we show the income बेटा. पूरा चैप्टर में बेटा, बहुत लॉन्ग चैप्टर है ये. होल चैप्टर में बेटा इनकम इज टेकन ऑन द x-axis ऑलवेज. आप कोई भी पेज देख लो, किसी भी बुक के अंदर चेक कर लो, इनकम आउटपुट इज टेकन ऑन द x-axis एक्सेप्ट इनकम को छोड़ के. इस चैप्टर में जो भी आप वर्ड यूज करेंगे टर्म्स, C कंजम्पशन, S सेविंग्स, I investment, aggregate demand, AD, aggregate supply, AS, all terms are used in the y-axis. सब कुछ आपने y-axis पे यूज करना है. And income, that means Y, income is taken on the x-axis पे आप शो करोगे. The symbol of income is Y. तो income is taken on the x-axis बेटा. So income increase हो रही है, अगर आपकी investment भी increase हो रही है बेटा, upward sloping आपके सामने डायग्राम है, इतनी हमें नॉलेज है ये बेटा. अब income increase, investment also increase. This is called the induced investment. Autonomous investment, which is generally done for the social welfare beta and not for profit motive beta. Induced investment is income elastic. Induced investment आपकी income elastic है. Elastic means change. तो income के change होने पे अगर investment में भी changes आ रहे हैं बेटा, आप ये diagram check कर सकते हैं. Income increase, investment also increase. It is called the income elastic. Income के change होने पे investment भी fluctuate हो रही है. That is called the income elastic. While autonomous investment is income inelastic, that means income के change होने पे autonomous investment में कोई भी changes, किसी भी type का कोई changes नहीं आ रहा. It is parallel to x-axis. Which investment is parallel to x-axis? It is called the autonomous investment. Which investment is income inelastic? It is called the autonomous investment. जिसको पता हो yes, जिसको पता हो साथ साथ बोलते जाओ बेटा. It's a revision, recall हो रहा है बेटा.
चैप्टर साइड बाय साइड रिवीजन होती जाए बेटा, उससे अच्छी क्लास नहीं हो सकती बेटा, चाहे टाइम लगे बट ऑन टाइम पे पहुंच जाएंगे अच्छे ढंग से। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज जनरली डन फॉर द प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर बाय की जाती है। इट इज जनरली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए है बेटा, तो प्राइवेट सेक्टर ही प्रॉफिट के लिए ज्यादा सोचता है बेटा। बट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग वर्क करती है बेटा, तो दैट्स व्हाई इट इज जनरली डन बाय द, इट इज जनरली डन बाय द, हम बोल रहे हैं बट नॉट ऑलवेज बेटा, जनरली डन बाय द सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग है और डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। डायग्राम, induced investment is upward sloping diagram beta, autonomous investment is parallel to x axis, constant straight line parallel to x axis, horizontal straight line beta। बाकी आप डायग्राम में इसमें चेक कर सकते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर्स बेटा। नेक्स्ट लाइन इज, नेक्स्ट पैरा बेटा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बेटा। लास्ट क्लास में यहीं से हमने स्टार्ट करना था, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बेटा। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, अब एडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अकॉर्डिंग चैप्टर में डिस्कशन करनी है बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडी, क्या फॉर्मूला बेटा, सी प्लस आई बार बेटा, वेरी गुड, साथ साथ बार भी यूज कर रहे हो माइंड में रिकॉल याद रखने के लिए। तो एडी का फॉर्मूला होता है बेटा सी प्लस एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई बार, दैट मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होगा बेटा, शेड्यूल मींस क्या होता है बेटा, टेबल। सर टेबल की फॉर्म, सर कंजम्पशन और इनकम की और एक इन्वेस्टमेंट की होगी relationship beta, that means that schedule will show the relationship between consumption and investment corresponding to different level of income। that means income के different level में आप कितनी consumption कर रहे हैं बेटा, with respect to income के different level में आप कितनी consumption कर रहे हैं बेटा और कितनी आप investment कर रहे हैं बेटा। income का relationship consumption के साथ, income का relationship investment के साथ, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कर दोगे बेटा तो आंसर आपका आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, आपके सामने आ जाएगा, एडी की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट टेबल, दैट शेड्यूल विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। वो टेबल जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको झलक दिखाए, इट इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि पूरे चैप्टर में बेटा, होल चैप्टर में हमने कुछ और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ ओनली वाई के साथ रिलेशनशिप, इनकम के साथ रिलेशनशिप आपने गो थ्रू करना है बेटा। इनकम के साथ डिफरेंट टर्म्स का क्या रिलेशनशिप है, क्लास में अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता बेटा इनकम का सिंबल क्या है बेटा, द सिंबल ऑफ इनकम इज वाई। हमारे इनकम का सिंबल क्या यूज होता है बेटा, वाई। इस बात का सबने ध्यान रखना है बेटा, द सिंबल ऑफ इनकम इज वाई है, तो इनकम का सिंबल के अकॉर्डिंग ही उसको आप यूज करोगे बेटा। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। हर चीज को लिखते जाओ, नहीं पता तो नॉलेज के अकॉर्डिंग बार बार उसको रोटेट करते जाओ। नोट्स में हर एक लाइन को बार बार एक्सप्लेन किया गया और बार बार मैं बोलता भी जा रहा हूँ बेटा। इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू वाई बेटा। सो शेड्यूल के बारे में हमें पता चल चुका है बेटा। तो शेड्यूल बनाना कैसे है, टेबल कैसे प्रेजेंट करना है बेटा, सी दिस वन। लास्ट क्लास में हमने यहीं पे कुछ क्लास को एंड किया था। तो कोमल, यस, सी का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड कोमल, लास्ट क्लास में हमने इस टेबल को समझा था, आज टेबल में आपको दोबारा से बता रहा हूँ बेटा क्लास में। टेबल कैसे प्रेजेंट करना है बेटा, क्योंकि होल चैप्टर के एंड पार्ट तक हमारा यही एक सिंगल टेबल चैप्टर चलता जाएगा। अगर ये चैप्टर 150 पेज के आसपास का है बेटा, तो याद रखना 150 के 150 पेजेस में बेटा अगर हमने कोई टेबल बनाना है हाइपोथेटिकल एग्जांपल के अकॉर्डिंग, हमने एक सिंगल टेबल बनाना है। दिस एग्जाम में कुछ अपना एग्जाम अपने आप से, बिल्कुल राइट बेटा, एक टेबल याद कर लो, आपका पूरा एडीएस की टेंशन खत्म हो जाएगी बेटा। अगर पेपर में आए विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अपना एग्जांपल शो करने आना है आकर, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा टेबल हमें मिलेगा नहीं। बहुत इजीएस्ट फॉर्म में हमारा टेबल प्रेजेंट है और एक्सप्लेन कैसे करना है वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। बट पहले एक बार टेबल में दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट लास्ट क्लास में नहीं लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। we use y from 0, 50, 100, 150, जिसने लास्ट क्लास में बनाया होगा साथ साथ मुझे बताता जाए बेटा स्टूडेंट। 200 इनकम, 0, 50, 100, 200। इनका हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं बेटा, 50-50 का डिफरेंस ले रहे हैं। इट्स एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल बेटा। सेकंड पॉइंट इज नोन एज अ सी। सेकंड शायद हमें सी ही लिया था, चेक कर सकते हो। कंजम्पशन कहां से स्टार्ट की थी बेटा हमने, 40 से। 40 से कंजम्पशन, यस, कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम 40 बेटा, 40, देन उसके बाद बेटा जस्ट अ मिनट 70, देन 100,
100, then 130, 160, 130, then 160. 160. कंजम्पशन को हम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, सर इससे वो भी भी कोई इजी डेटा सिंपलिसिटी ले के सकते लिए हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हो, जो याद हो जाए बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इजी डेटा तब लिखना जब सारा आंसर्स मुझसे सुन लो कि ओके ये सर। लाइन क्यों आई, कैसे बनी, किस फॉर्म में बनी, वो पॉइंट सारे मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे, तो देन उसके बाद कोई भी बना लो। ठीक है बेटा आयुष? यस सर। यस बेटा, तो कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम 40 से हम कंजम्पशन को स्टार्ट कर रहे हैं, देन 30 का डिफरेंशिएट हमने यहाँ शो किया है, 40, 70, 100, 130 एंड देन 160 बेटा। देन वी यूज बेटा इन्वेस्टमेंट, बिकॉज सिंप्लिसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट वी यूज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो मैंने उसके ऊपर बार का वर्ड यूज कर लिया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओवरऑल बेसिस पे बेटा। अब इन्वेस्टमेंट हमने कितनी लेट की थी बेटा? 20, 20. 20। इन्वेस्टमेंट को हम टोटली लेट कर रहे हैं 2020, दैट मींस इन्वेस्टमेंट एवरीवेयर, जहां पे भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं इन दिस टेबल में बेटा, वी एज्यूम इन्वेस्टमेंट इज 20 ओवरऑल बेसिस पे बेटा। सो इन्वेस्टमेंट हर जगह पे आप 2020 को मेंशन कर सकते हो। वेट अ मिनट, सो इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 20, इट्स अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटा। इन्वेस्टमेंट योर इनकम योर इंक्रीज और डिक्रीज, but investment is always remain constant beta I. Then we use S. S stands for saving. अभी saving के बारे में हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं की है, ना ज्यादा सीखा है बेटा, बट इतना तो हमें सबको नॉलेज होगी बेटा, Y is equal to C plus S, न्यू फॉर्मूला बेटा। हर जगह हर पेज पे कोई ना कोई नया फॉर्मूला हमारे इस चैप्टर में यूज हो रहा है बेटा, एवरीवेयर बार बार कोई ना कोई नया फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। There is a single formula y is equal to c plus s. इनकम का कुछ पार्ट आप कंज्यूम करते हैं बेटा, कुछ पार्ट आप क्या करते हैं, सेव बेटा। y is equal to c plus s. Suppose your income is, suppose just an example, your income is rupees 1 lakh. आप इनकम 1 लाख रुपीज जनरेट कर रहे हैं बेटा। इन दैट केस अगर आपने कंजम्पशन बेटा टोटल 70,000 आपने कंज्यूम कर लिया बेटा, देन व्हाट इज योर सेविंग? 30,000. 30,000. 30,000 बेटा, सेविंग इज 30,000 बेटा। एक जनरल मैन के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो वो इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करता है, कुछ पार्ट सेव करता है। एस स्टैंड फॉर सेविंग। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए बेटा हम निकाल सकते हैं अपने इस टेबल में सेविंग। आपको लर्न क्या करना है बेटा? सिर्फ y और c ही तो लर्न करना था। i ऑटोनोमस है बेटा, वो तो सेम ही हो गई। नाउ y माइनस c इट इज कॉल्ड योर, क्या आ जाएगा बेटा? सेविंग्स। तो फर्स्ट सेविंग की वैल्यू कितनी आई बेटा? -40. -40 by minus c. Yes, right. First saving is -40. Second one is -20. -20. Third one is 0. 0. Third saving is 0. इस 0 saving की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा। Third saving is 0. Fourth saving is 20, 20. Fifth one is 40. 40. sixth one is 40 beta. Next one is yes 40. So this is known as saving. S stands for saving. -40, -20, 0, 20 and 40 beta. Now we calculate the last column इस टेबल के अकॉर्डिंग अभी, that is called the AD, aggregate demand. What is the formula of aggregate demand? C plus I. C plus I bar. C plus I bar. Bar stands for autonomous बेटा। तो C plus I दोनों को हमने क्या करना है बेटा? इसमें प्लस करना है बेटा। तो why not C plus I प्लस करते जाएं। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा AD की? C plus I 60. 60. Second value 90. 90. Third value 120. 120. Yes. Fourth value 150. 150. Fifth value 180. 180. 180. This is called the AD. C plus I. Now the most important concept of this table, इस टेबल से रिलेटेड जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने ये आता है बेटा, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, वेट अ मिनट, यस, at zero level of income consumption is 40. How this possible? इनकम जीरो, जेब में पैसा नहीं है, कंजम्पशन 40 हो गई, ऐसा कैसे हो गया?
एनीवन जो स्टूडेंट बता सकता है, रेज योर हैंड। क्या सर? सैनी यस बताओ बेटा, सर, सैनी क्वेश्चन बताओ रिपीट बेटा, करना। हैंड रेज करना है बेटा। हाँ सर, तुषार अभी ऐसे नहीं बोलना, तुषार ऐसे नहीं बोलना बेटा, पहले हैंड रेज करोगे देन उसके बाद बताना बेटा। सर क्या बताना है? यस बताओ बेटा। सर मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? इनकम 0, कंजम्पशन इज 40, हाउ दिस पॉसिबल तुषार, ये पूछा था बेटा मैंने। सर क्योंकि अगर कोई कुछ जस्ट अ मिनट बेटा, प्लीज सैनी यस बताओ। सर क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए फूड चाहिए होगा, तो वो कुछ तो कंजम्पशन करेगा और उसके बाद सेविंग्स भी होएगी। बिल्कुल राइट बेटा, दैट मीन्स हर पर्सन को लाइफ दुनिया में आया है बेटा, कुछ तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा ना, नो मैटर वो उसकी पास सेविंग हो या फिर बोरिंग्स हो बेटा। यस आयुष आप बताओ बेटा इसके बारे में। इनकम 0, मैं यही कह कंजम्पशन। रहा था कि अगर कोई कुछ कमा भी नहीं रहा तो भी उसको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करने के लिए, जीने के लिए चाहिए ही, तो बिल्कुल इसलिए राइट बेटा, कंजम्पशन तो रहेगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी। बिल्कुल राइट, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। शाइना आप भी बता दो बेटा एक बार। यस बेटा, शाइना वॉइस नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी, नो प्रॉब्लम बेटा। सो इनकम 0, कंजम्पशन इज 40 बेटा, द आंसर इज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। सिंपल वर्ड, ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं बेटा। सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन बेटा, दुनिया में आए कुछ तो खाएंगे बेटा, चाहे वो बोरो करके खाएं चाहे वो पास सेविंग हो। इस कॉन्सेप्ट में हम इसको अपनी पास सेविंग्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं बेटा। सेविंग आपकी माइनस में हो गई 40, कंजम्पशन आपकी प्लस 40 है बेटा। इसका मतलब आप उसी सेविंग्स को यूज कर रहे थे कंजम्पशन की फॉर्म में। सेविंग माइनस 40 का मतलब है सेविंग फॉल हो गई, जितनी आपकी सेविंग थी उसके अकॉर्डिंग कंट्री में फॉल हो गई सेविंग्स, और वही कंजम्पशन का पार्ट बन गई, बिकॉज इनकम उसमें कुछ भी नहीं थी। इसका मतलब इस कंजम्पशन में आपकी इनकम का कोई रोल नहीं था। जो आपने 40 करोड़ रुपीस 40 कंजम्पशन की है बेटा नेशन के अंदर बेटा, उसमें इनकम का बिल्कुल भी रोल नहीं है बेटा। तो दिस कंजम्पशन इज नोन एज द, इस टाइप की कंजम्पशन का नेम होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसका सिंबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर सी बार। साथ साथ सिंबल लिखते जाओ बेटा हर पॉइंट के बेटा। यस तुषार बोलो बेटा। सर मैं करता कि इसका ये भी तो रीजन हम कह सकते हैं ना एक सिंपल लैंग्वेज में कि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। राइट, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। आगे क्वेश्चन भी आ रहा है बेटा, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, some minimum level of consumption is case. always right. In any case beta, some minimum level of consumption is always there, that is called the autonomous consumption. That means जीरो इनकम के सामने बेटा जो कंजम्पशन आप यूज कर रहे हो उसका नेम है ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसका कॉन्सेप्ट है बेटा सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। एनी लेवल ऑफ इनकम जीरो ही क्यों ना हो बेटा, तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगी ही होगी, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती है। और वो कंजम्पशन जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप ना हो, उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है ऑटोनोमस। और सो दिस जीरो लेवल के सामने जो हम कंजम्पशन यूज कर रहे हैं बेटा, इट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। आयुष हैंड डाउन कर दो बेटा, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन बेटा, सी बार। इज इट क्लियर यहां तक सबको बेटा? यस Yes, दिशा, sir. सिया, जी सर। साहिल क्लियर बेटा, रोचित, प्रणव, वंश लूथरा बेटा क्लियर टॉपिक सबको? अमित क्लियर बेटा? Yes, sir. अर्पित, अश्मीत बेटा, अश्प्रीत बेटा क्लियर? अभियुक्त, चाहत, Yes, sir. Yes, sir. प्रबलीन, मनीत बेटा, पारुल, ओबलेश, लवन्या, Yes, यस sir. लक्ष्य, कृष तलवार, कोमल। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक बेटा जो हमने इसको यूज किया बेटा, फर्स्ट फेवरेट पॉइंट बेटा। हर पॉइंट की आगे डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है बेटा कि हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं तो टेबल में ही हम एंड कर देंगे इस चैप्टर को। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जीरो इनकम के सामने कंजम्पशन है, नोट्स में आगे मेंशन है बेटा। एक एक लाइन वहां पे थ्योरी फॉर्म में मेंशन है, बट यहाँ से सीख के जाओगे थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। आयुष हैंड डाउन कर दो बेटा प्लीज। नाउ सेकंड पॉइंट इज बेटा, पॉइंट नंबर 2, द फेवरेट पॉइंट इज नोन एज बेटा एट that point beta where income is equal to consumption, जिस पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है बेटा, दैट मींस उस पॉइंट सेविंग की वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट पे सेविंग की वैल्यू क्या होगी? Zero. जीरो। दैट पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। Macroeconomics break-even point is that point beta where income is equal to consumption.
और वेयर सेविंग इज इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो, ऑब्वियसली उस पॉइंट पे सेविंग 0 होगी ना। कंट्री की इनकम जो है 100 करोड़ है और कंजम्पशन भी टोटल 100 करोड़ के इक्वल आ गई बेटा, तो सेविंग विल बी 0 हो गई। आप 100 करोड़ रुपीज अर्न कर रहे हो बेटा, 100 ही आपकी कंजम्पशन हो गई बेटा, तो सेविंग 0। इसका मतलब कुछ भी सेविंग नहीं हुई बेटा, ब्रेक लग गई। याद रखने का वे बेटा, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट बेटा, उस पॉइंट का नेम है। सो बोर्ड में ये क्वेश्चन आई थिंक सो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, शायद आज के 10 सालों में 5 to 6 टाइम ये रिपीट हो गया होगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सम टाइम 3 मार्क्स, सम टाइम 6 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, जिसका डायग्राम बनाना होता है। आगे 6 मार्क्स का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तैयार है फुली। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो बेटा, विद डायग्राम के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, टेबल सेम चलेगा, बट उसको 6 मार्क्स में कैसे लिखना है वो हमने सीखना होगा। सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सेविंग। तो सेविंग के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा? जहां सेविंग 0 होगी बेटा। एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन कर्व। इनकम एंड कंजम्पशन कर्व, दैट मींस जहां पे इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल होंगी, इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, जो आगे हम सीखेंगे बेटा डायग्राम कैसे बनाना है। अभी तो सिर्फ टेबल चल रहा है क्लास में बेटा। सेकंड फेवरेट पॉइंट इज नोन एज अ सेकंड फेवरेट पॉइंट। ये तो हो गया बेटा आपका ब्रेक इवन पॉइंट बेटा। द सेकंड फेवरेट पॉइंट इज दैट पॉइंट बेटा वेयर y इज इक्वल टू, दैट मींस वेयर इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। जिस पॉइंट पे इनकम AD के इक्वल होता है बेटा, at that point where y is equal to AD, aggregate demand, that point is known as the macroeconomics point of equilibrium. That is known as the equilibrium point. जिस पॉइंट पे y और AD एरिगेट डिमांड दोनों आपके इक्वल होंगे बेटा। y 150 करोड़, एरिगेट डिमांड जो है 150 करोड़। ये पूरा टेबल हम रुपीस करोड़ में दिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि एरिगेट डिमांड एरिगेट सप्लाई जो है बेटा वो नेशनल कंट्री के अकॉर्डिंग दिखाई जाती है, शो की जाती है। तो नेशन के अकॉर्डिंग ये टेबल बन रहा है। 150 करोड़ इनकम, 150 करोड़ एरिगेट डिमांड बेटा एज अ टोटल। y इज इक्वल टू AD, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इस टेबल के अकॉर्डिंग तो हमें ये पता चल रहा है बेटा कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले आता है, बिफोर। जिस पॉइंट पे जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन हो गई, आपकी ब्रेक लग गई, इसका मतलब सेविंग विल बी 0। जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग जिस समय स्टार्टिंग में बिजनेस उसने स्टार्ट करता है बेटा, तो कई बार उसके लेवल में रियल लाइफ में बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट बहुत बार आता है बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जितना उसका इनकम था उतनी उसकी कंजम्पशन हो गई बेटा, मतलब उसकी सेविंग कुछ हुई नहीं इनडायरेक्टली। जितना पैसा आया उतना पैसा चला गया, कोई एक्स्ट्रा उसने ग्रोथ नहीं की बेटा। इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग विल बी 0 उस पॉइंट पे। And point of equilibrium is that point where y is equal to AD। जिस पॉइंट पे y और AD इक्वल होंगे, this point is known as a point of equilibrium। Is it clear यहां तक सबको बेटा? Point of equilibrium, break even point। यस यस सर। हाँ जी बेटा, तो टेबल जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, ब्रेक इवन पॉइंट और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जस्ट अ मिनट। टेबल हम सबके लिए बनाना बहुत मस्त है बेटा। सी दिस वन, टेबल में भी एक एक लाइन हमें लिखी हुई है बेटा। C40 at zero level of income, consumption is 40 करोड़ बेटा। दिस इज कॉल्ड द C बार, प्रॉपर मेंशन है C बार। इट इज कॉल्ड द, इस पॉइंट का नेम भी यहाँ लिख दो, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ पे ऑटोनोमस का मतलब है जिसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है बेटा, इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस। तो जीरो इनकम के सामने कंजम्पशन अगर 40 करोड़ है, इसका मतलब इनकम से इसका कोई लिंक ही नहीं है। इनकम का तो यूज ही नहीं किया भाई हमने, इनकम तो 0 थी ना। उस कंजम्पशन का नाम होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज कॉल्ड द 40 करोड़ बेटा। फर्स्ट फेवरेट पॉइंट जो पूछा जाएगा एग्जाम में मोस्टली बेटा। सेकंड फेवरेट पॉइंट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट बेटा वेयर y इज इक्वल टू C। जितना इनकम है उतनी आपकी कंजम्पशन हो गई, तो सेविंग विल बी 0 हो गई। इट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट आर 2 अप्रोचेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट? टेल मी। So when saving तो is पहला 0 तो and when income equals to consumption। y is बिल्कुल राइट equal बेटा, वेयर to सेविंग c इज इक्वल टू 0, राइट, वेयर सेविंग इज इक्वल टू 0 और वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। अब किसके सेट में कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है किस स्टूडेंट के सेट में। बोर्ड में अगर डिफरेंट सेट आए तो कौन सेट में आएगा? किसी सेट में आ जाएगा एक्सप्लेन वेयर सेविंग इज इक्वल टू 0, ब्रेक इवन पॉइंट। किस सेट में आ गया एक्सप्लेन वेयर y इज इक्वल टू C, ब्रेक इवन पॉइंट बेटा। और ऐसा भी हो जाता है दोनों क्वेश्चन कंबाइंड भी आते हैं बेटा, उसका कंबाइंड डायग्राम हम बनाएंगे आगे। y इज इक्वल टू C और s इक्वल टू 0 बेटा।
एंड सेकंड फेवरेट पॉइंट जो हमारा मेन पॉइंट था बेटा, दैट इज कॉल्ड द वेयर y इज इक्वल टू AD। जिस पॉइंट पे AD. y और AD दोनों इक्वल होंगे बेटा, it is called this point is known as a point of equilibrium or macroeconomics equilibrium point. This question is also related to the 6 marks point of view or now a 5 marks point of view. Explain macroeconomics equilibrium point. Macroeconomics equilibrium point वो point है बेटा जहां पे y और AD इक्वल होते हैं बेटा। आगे और भी डिस्कशन आएगी इसके बारे में, बट अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, जो सामने सामने इंफॉर्मेशन आई है, हाईलाइटेड पॉइंट जहां y और AD इक्वल होंगे, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसी पॉइंट पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होंगे बेटा। सी दिस वन, सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी है इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे? 20. 20 करोड़ 20. बेटा। तो आप चेक कर सकते हैं जिस पॉइंट पे y और AD इक्वल है उसी पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। ऐसा कैसे हो गया भाई? सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल आ गई बेटा? डिस्कशन करेंगे आगे। Why this possible बेटा? आगे डिस्कशन होगी इसकी बेटा। So point of equilibrium, two approach. What are the two approach of point of equilibrium? Point of equilibrium. Point of equilibrium, two approaches. Number one is known as a Break even Where point. y equals to 80. no point of equilibrium की बात चल रही है बेटा। क्रिस सैनी ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैंने नहीं बोला बेटा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की टू अप्रोच डिस्कस की है बेटा। कौन सी होंगी बेटा? जहाँ पे Sir, इनकम y equals to 80. Yes, where income is equal to AD. और second point is known as a बेटा where S is equal to I, saving is equal to I. This is called the point of equilibrium. Chris, any clear? Yes, sir. Yes, but ऐसा होता क्यों है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। वो आएगा why this S equal to I equal कैसे आ गया भाई इस पॉइंट पे, वो डिस्कशन सब चलेगी बेटा। बट अभी तक टेबल के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है बेटा। तो उस रिजल्ट का शॉर्ट आंसर दिस वन। अब ये लिखते जाओ, अगर आप टेबल बना चुके हो मेरे सामने अभी बेटा, इस चैप्टर के नोट्स सबने साइड बाय साइड बनाने हैं बेटा। प्लीज रिक्वेस्ट है ऑल स्टूडेंट से बेटा इस चैप्टर के नोट्स साथ साथ बनाना, सामने बैठ के प्रॉपर वे में, कोई भी मिस ना करे बेटा। जितना लिखवाया जा रहा है हर चीज आपको पता है, बार बार डिस्कशन हो रही है, कोई फास्ट में इतना नहीं चला जा रहा बेटा, हर चीज डिस्कशन साइड चल रहा है। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अ वेयर y इज इक्वल टू AD। अभी as हम में मत लिखो बेशक अभी आप y लिख लो, as को बाद में डिस्कस करेंगे, सर डिस्कशन अभी तो आप ये नहीं। समझाओगे ना कि ex ante हाँ saving और बिल्कुल, ex अभी ante पूरा क्लियर होगा investment. बेटा, अभी सब डिस्कशन होगा बेटा इसमें, बट अभी तो सिर्फ टेबल के बारे में मैंने बताया है बेटा। Where as y is equal to AD, it is called the, जिस पॉइंट पे y और AD इक्वल होंगे, it is called the point of equilibrium। और जिस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इस पॉइंट को अभी मत लिखो, दिस वन अभी डिस्कशन करेंगे जब आएगा तब। प्लस ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मेंशन कीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू C और S इज इक्वल टू 0। जितनी इनकम है उतनी कंजम्पशन हो गई। दो पॉइंट के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन कर ली है इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट वर्सेस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में अभी डिस्कशन चलेगी। y is equal to C, it is called the point of equilibrium, और S equal to 0। नोटेड